Good morning, dear students. So, we have completed our chapter number 1. Now, let's look into the exercise portion. जितना भी हमने किया है वो एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं और एक्सरसाइज भी देख लेते हैं. Okay? Now, on page number 8 of your textbook, we have a revision work of the entire chapter. यहाँ पर living things है, ये non living things है. living thing के examples हैं man, bird, tree, animals. ठीक है. So they all need air, food and water. They can move, they can grow, they produce young ones, they give out waste products, they respond to stimuli, and they have a lifespan. Whereas on the other hand, we have non-living things like pencils, rocks and stones, cup, car. These are all non-living things. And the non-living things, they do not need air, food and water. They do not move on their own. They do not grow. They do not have young ones. They do not give out waste products. They do not respond to stimuli, and they do not have a lifespan. So based on this revision section, we have certain true or false type questions, which is on page number 9 of your textbook. This is the question. Study the two pictures. Picture A describes living thing and picture B describes non-living thing. You have to tick the true sentence and cross the false sentence for each picture. ठीक है, ये देखो. Here you can see all living things. क्या क्या है इसमें? ट्री है, फ्लावर्स है, बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, मैन है. ठीक है, these are all living things. Whereas on the other hand, you can see a calendar, a chair, bat, ball, shuttlecock, badminton का racket, water bottle, umbrella, kite. These are all non-living things. So what is the difference? किसमें आप जो ट्रू स्टेटमेंट है उसमें आप टिक करोगे और फॉल्स वन में आप क्रॉस करोगे. सो इफ वी लुक एट एंड इफ वी कंपेयर बोथ द पिक्चर्स, आप ध्यान से देखो. सी, these are all living things, so they can grow. Yes. Non-living things grow करते हैं? No, they don't grow. Second difference, they do not need water, air and food. लिविंग थिंग्स को तो एयर, फूड और वाटर चाहिए, तो ये जो लिखा है वो तो फॉल्स है. व्हेन इट कम्स टू नॉन लिविंग, दे नीड वाटर, एयर एंड फूड. ऐसा थोड़ी होता है. नॉन लिविंग थिंग थोड़ी खाना खाते हैं, सांस लेते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. लिविंग थिंग्स दे प्रोड्यूस यंग वंस. येस, सभी के यंग वंस होते हैं, सो दिस इज ट्रू. Whereas non-living things, they do not produce young ones. ये भी सही है. Living things, they can move on their own. Yes, correct. Except the trees, all living things, they can move on their own. Non-living things, they cannot move on their own. ये भी सही है. Living things, see, they are living things. These are all living things. Yes. दे आर लिविंग थिंग्स. अरे ये तो सारे नॉन लिविंग है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये तो गलत है, रॉन्ग. एंड दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, येस इट इज करेक्ट. दीज ऑल यू विल बी मार्किंग इन योर टेक्स्ट बुक. और एग्जाम में मैं ये जो एक्टिविटी है वो ट्रू और फॉल्स के सेंस में पूछ सकती हूँ. ठीक है. सो अच्छे से सारे वीडियोस देखना, सोच समझ के अच्छे से ये चैप्टर रिवाइज करना. मैं कभी भी इसका क्लास टेस्ट लूँगी. ठीक है. एंड देयर वाज वन क्वेश्चन नंबर 2 इन टिक द करेक्ट ऑप्शन. प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर. प्लांट्स फूड किस में बनाते हैं? लीव्स में, रूट्स में, फ्लावर में के सीड्स में. सो प्लांट्स दे प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स. तो ये लीव्स पे आप टिक करेंगे. आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये एमसीक्यू लिख लिया होगा, सिर्फ इसका ऑप्शन टिक करना बाकी होगा. तो अभी इसका ऑप्शन आप टेक्स्ट बुक में भी टिक करेंगे और नोटबुक में भी टिक करेंगे.
ठीक है। सो MCQ आपने लिख लिए थे, ओनली द सेकेंड वन का ये जो ऑप्शन है वो बाकी था, वो आप कर लेंगे, ठीक है। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस हमने ऑलरेडी कर लिया था ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस, ये हमारा डिस्कस करना बाकी था, विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। बट बिफोर दैट आई विल बी आस्किंग यू टू मार्क अ फ्यू fill in the blanks type question in your textbook itself, and the same you will be copying in your notebook. I'll show you. Page number 2 of your textbook, where they काट के आप लिखोगे animals obtain food and water from their surrounding. So this is going to be your first blank. ये जो बॉक्स में जो वर्ड लिखा है वो आप ब्लैंक में लिखेंगे, ठीक है। सो दिस एंटायर सेंटेंस यू विल बी राइटिंग एज फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। देन comes the second one. Animals such as dogs, snakes, monkeys and birds breathe through dash, तो डैश में आप लिखेंगे lungs. The third blank, insects breathe air through tiny dash present on their body, तो यहाँ लिखेंगे holes. Fourth one, plants take in air through tiny holes called dash present on their leaves, तो ये tiny holes को क्या बोलते हैं? Stomata. This also you will be marking in your textbook and you will be writing the same in your notebook. On the same page, that is page number 3, you have one more fifth fill in the blank. Non-living things do not need air, sunlight or dash. So dash में you will be writing warmth. Now come to page number 4 of your textbook, where you have one more fill in the blank. Water birds such as ducks and swans have dash that help them to swim. तो वाटर बर्ड्स के पास क्या होते हैं? इसे क्या बोलते हैं? वेब्ड फीट. देन व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्नेक. स्नेक्स डू नॉट हैव डैश. स्नेक के पास क्या नहीं होता? लिम्स, मतलब कि हाथ पैर ऐसा कुछ होता नहीं. देन एट्थ वन, डैश आर एनिमल्स विथ हेयर ऑन देयर बॉडीज. कौन से एनिमल्स हैं जिसके बॉडी पे हेयर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? दे आर मैमल्स. मार्क भी करोगे आप टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में लिखोगे भी, ओके। नाउ दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स विच यू विल बी राइटिंग टुडे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस. आप नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे. द फर्स्ट वन, डू फ्रॉग्स नीड एयर टू लिव एंड हाउ डू दे टेक इन एयर? सी, फ्रॉग है वो लिविंग थिंग है, तो सभी लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए एयर तो चाहिए. तो यस, फ्रॉग्स नीड एयर टू लिव. और वो कैसे सांस लेते हैं? फ्रॉग्स को तो आपने देखा भी होगा, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. सो कैसे सांस लेते हैं? व्हेन दे आर ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, एंड व्हेन दे आर इन वाटर दे टेक इन एयर फ्रॉम वाटर थ्रू देयर स्किन. उसकी स्किन से सांस लेते हैं जब वो पानी में होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू बर्ड्स मूव? आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा, वो कैसे मूव करते हैं? वो अपने पंख फैला के उड़ते भी हैं और पैरों से चलते भी हैं. सो व्हाट विल यू राइट? बर्ड्स हैव 2 legs and 2 wings. They use their wings to fly and legs to walk. Third question, write the difference between growth in plants and in animals. अच्छा, क्या डिफरेंस होता है? प्लांट्स तो बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, बट एनिमल्स आफ्टर अ सर्टन एज दे स्टॉप ग्रोइंग इन साइज. सी, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. एनिमल्स ग्रो इन साइज ओनली ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स. वो कुछ ही सालों तक एनिमल्स साइज में बढ़ सकते हैं, उसके बाद उनकी साइज वैसी की वैसी ही रहती है. द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल टू शो दैट लिविंग थिंग्स नीड
अ प्रॉपर प्लेस टू लिव। आपको तो पता ही है कि सभी लिविंग थिंग को एक प्रॉपर प्लेस चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? सी, ऑल लिविंग थिंग्स नीड ए सुटेबल प्लेस टू लिव, ये तो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट ट्रीज ग्रो इन वार्म रीजन्स क्लोज टू सी। आपने कोकोनट ट्री देखा है ना दरिया किनारे के पास, वेयर द क्लाइमेट, वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो वार्म होती है, वहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी गर्मी भी होती है। एप्पल ट्रीज ग्रो इन कोल्ड रीजन। एप्पल ट्री कहाँ पर होते हैं? आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि शिमला के एप्पल, तो शिमला कैसी जगह है? कोल्ड जगह है। तो नॉर्मली एप्पल्स जो है दे ग्रो इन कोल्ड रीजन। सो ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी गिविंग यू द फोटोग्राफ एंड यू विल बी कॉपिंग द सेम, और आप मुझे 1-2 दिन में टोटली कंप्लीट करके आप भेज देंगे, ठीक है? एंड इन द नेक्स्ट सेशन you will be having a test based on chapter number 1, living and non-living things. Along with that, see, here you have fill in the blanks जो कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक में टिक करवाए हैं, ये सारे मैंने नोटबुक में भी लिखे हैं। इन टोटल देयर आर 8 blanks, ठीक है? सो यू विल बी कॉपिंग ऑल द 8 blanks और अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करना। अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखा तो फिर से आप देख लेना, ठीक है? सो दैट ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर। ओके, बाय बाय।